السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی. نظام نے جانی خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر پرتشدد انتہا پسند کی روک تھام کے لیے قومی پالیسی 2024 کی منظوری دے دی ہے. اعلامیہ کے مطابق وفاقی کابینہ نے چائنیز سالٹ کی درآمد پر پابندی ہٹانے کے لیے نظرثانی درخواست دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ماہرین کی کمیٹی نے رپورٹ میں چائنیز سالٹ کو انسانی صحت کے لیے محفوظ قرار دیا. کابینہ اعلامیہ کے مطابق کیمبرج یونیورسٹی، سینٹ اینٹونیئس کالج، یونیورسٹی آف آکسفورڈ اور یونیورسٹی آف جارڈن سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اسپیشل کورٹس کی حدود دائرہ کار میں تبدیلی کی منظوری دی گئی. اجلاس میں غیر ملکی جامعات میں پاکستان چیئرز سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں کی تجدید کی منظوری دی گئی ہے. PTI نے اپنے غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے ملک کی بے عزتی کرائی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب. کہا احتجاج کے باعث ایک دن میں اسٹاک مارکیٹ 3000 پوائنٹس گری. احتجاج ختم ہونے کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں پھر تیزی شروع ہو گئی. 70 ماہ بعد مہنگائی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. آرمی کی مکمل گرفت سے اسمگلنگ زیرو ہو چکی. سابق حکومتی وزیر غیر ذمہ دارہ بیان سے PIA پر یورپ میں پابندی سے اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا. ملک میں چینی کی وافر مقدار کے پیش نظر برآمد کرنے کی اجازت دی گئی. FBR محصولات کا ہدف حاصل کرے گا تو نظام میں بہتری آئے گی. ملک کی جو انہوں نے بےعزتی کروائی غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے، ایک دن کے اندر اسٹاک ایکسچینج 3500 پوائنٹس نیچے آگے گرا. ڈی چوک سے اور پیچھے جب ہٹے تو اگلے دن اسٹاک ایکسچینج نے دوبارہ باؤنس بیک کیا اور 70 مہینوں بعد پاکستان کی جو انفلیشن ہے کمی آئی ہے. تو سمگلنگ جو ہے افغانستان کی وہ زیرو ہو گئی. یہ سمگلنگ ختم ہوئی ہے آرمی کی مکمل گرفت سے. اسمبلی میں ایک منچلے وزیر نے کھڑے ہو کے پائلٹس ہیں ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا. چینی کی قیمت نہیں بڑھی لوکل مارکیٹ میں بلکہ کمپیریٹیولی نیچے گئی ہے. ایک ہفتہ گزر گیا، PTI اپنے ورکرز کے مقدمات کا اندراج نہ کرا سکی. قانونی اور سیاسی ٹیمیں احتجاج کی ناکامی کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگی ہیں. مقدمات کے اندراج کے لیے کارکنوں کو لطیف کھوسہ قانونی مدد فراہم کریں گے. تحریک انصاف نے جاں بحق افراد کا پوسٹ مارٹم کرانے کا بھی فیصلہ کر لیا. پارٹی لطیف کھوسہ کو زخمی اور جاں بحق ورکرز کی فہرست فراہم کرے گی. KP کابینہ نے ثانیہ ڈی چوک کے شہداء اور زخمیوں کے لیے پیکج کی منظوری دے دی. مشیر اطلاعات KP برسٹر سیف کے مطابق شہداء کے لواحقین کو 1 کروڑ اور زخمیوں کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. PTI کا ایک اور یو ٹرن. تحریک انصاف ڈی چوک میں سینکڑوں کارکنوں کی شہادت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی اور صرف 12 کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی. چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اب تک ہمارے شہید کارکنوں کی تعداد 12 ہے. بانی PTI کی صحت سے متعلق غلط خبر چل رہی تھی. بانی PTI اڈیالہ جیل میں بالکل ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا کسی بھی لیڈر کو ریلی کے ساتھ ڈی چوک آنے کا نہیں کہا گیا تھا. 26 نومبر کے واقعے کا بانی PTI کو علم نہیں تھا. بانی کا پیغام ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ جائیں، پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھائیں اور احتجاج کریں. آگے کے لائے عمل کا اعلان بانی PTI بعد میں کریں گے. ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں. خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ 26 تاریخ کو کیا ہوا ہے. ہر ورکر کو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو، کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لگو. خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی اجلاس کو ریکویزیشن کرو. خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے، چاہے ہم سنگجانی تھے، چاہے ہم ڈی چوک تھے، کسی بھی جگہ میں ہیں، پروٹیسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں امپیکٹ ہوتا ہے. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ایسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ. گولی نہیں چلنی چاہیے تھے. پاکستان تحریک انصاف پرامن پارٹی ہے. تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ KP علی گنڈا پور اور پارٹی رہنما اسلام آباد میں احتجاج کے دوران سینکڑوں کارکنوں کے شہید اور زخمی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں. علی گنڈا پور نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں پرامن احتجاج کرنے والے سینکڑوں کارکن شہید کر دیے گئے. لوگوں کو گولیاں ماری. ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے. ہمارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی ہوئی ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں. ہزاروں کارکن ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے. ہمارے لوگوں پر شدت اگر نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی آگے سے جواب نہ دیتے.
हम आजाद हैं। हमारे अजदाद ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई, मेरे साथ हमारे लीडर इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, वो मेरे साथ थी, उनमें भी हमला हुआ, तो कि मेरे पे हुआ, सारी बात उनमें भी हुआ, मेरे साथ जो थी। डी चौक पर जो कुछ हुआ उस पर पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI के अरकान पार्लिमान में बैठकर बात करें, हम मामलात हल करने को तैयार हैं। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सियासी मसाइल का हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आए बैठें, तमाम इशूज़ को हल करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो ज़ाती तौर पर KP में गवर्नर राज के मुखालिफ हैं। इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज, पुलिस ने बानी PTI के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शेब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वारंट गिरफ्तारी इंतज़ार दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जारी किए हैं। कोसार पुलिस ने बानी PTI समेत 96 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए हैं। उमर अयूब, शेर जबरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद, MNA अब्दुल लतीफ़, सूबाई वज़ीर रियाज खान, शेराम तरकई, जुल्फी बुखारी, समाना कनराजा, मुराद सईद, रऊफ हसन के वारंट भी जारी हो गए हैं। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक से गिरफ्तार होने वाले 281 मुलजमान को 14 रोज के लिए शनाख्त परेड पर सेंट्रल जेल अडियाला जेल भेज दिया। अदालत ने 2 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। डी चौक से गिरफ्तार 2 खवातीन समेत 283 मुलजमान को इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रूबरू पेश किया गया। मुलजमान के वकील अंसर कियानी भी अदालत में पेश हुए। पुलिस की जानिब से तमाम मुलजमान के शनाख्त परेड की इस्तदा की गई, जबकि मुलजमान के वकील अंसर कियानी ने शनाख्त परेड की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजमान को 6 दिनों से पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। शनाख्त परेड के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा भी मौजूद है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 2 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने, जबकि बाकी 281 मुलजमान को 14 रोज के लिए शनाख्त परेड पर सेंट्रल जेल अडियाला भेजने का हुक्म दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर गयास गुल का कहना है PTI के एहतजाज की कॉल से पूरा मुल्क हजान की कैफियत में रहा। पुलिस ने 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। 1150 में से 89 ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में रिकॉर्ड ही नहीं। पुलिस पर मनसूबाबंदी से हमला किया गया। PTI के एहतजाजी मुजाहिरीन ने ब्राजीली साख्ता आंसू गैस के शेल पुलिस पर बरसाए। पुलिस की वर्दी की तजलील की गई। DPO ने कहा कि मुजाहिरीन की गाड़ियों में मौजूद कैन में केमिकल मौजूद था। गिरफ्तार मुजाहिरीन अस्करी विंग के कारिंदे हैं। PTI के एहतजाज मुजाहिरीन में शामिल अस्करी स्क्वाड के नुमाइंदे 500 की टोलियों में चल रहे थे। ये लोग 3 से 4 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ने की सलाहियत रखते थे। पेशावर में वज़ीर आला KP अली मेंगडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। सूबाई काबीना ने CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बुलेट और बम प्रूफ गाड़ियां फराहम करने की मंजूरी दे दी है। इजलास में डी चौक वाक़े के शोहदा के अहल खाना के लिए मुआवजा पैकेज की मंजूरी दी गई। पेशावर में सूबाई काबीना इजलास में पेशावर हाईकोर्ट के लिए 10 जजेस की नई सामिया तख्लीक करने की भी मंजूरी दी गई। सूबाई काबीना ने KP पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना रिपोर्ट 2023 की मंजूरी दी। अक़लियतों के कोटे के तहत भर्तियों के मयार में नरमी के लिए हिकमत अमली बनाने की भी मंजूरी दी गई है। इजलास में जेलों में सिक्योरिटी अलाज, जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दी। काबीना ने जिला मेहमन के 106 खासादारों को KP पुलिस में जम करने की भी मंजूरी दी। 26 नवंबर को डी चौक शहादा के अहल खाना को 10 मिलियन और शदीद जख्मी होने वाले अफराद को 1 मिलियन रुपए फराहम किए जाएंगे। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं फाइनल कॉल बिल्कुल सही थी। बानी PTI ने डी चौक जाने के फैसले को सराहा। बानी ने कहा मुल्की एहतजाज के वाले से बाद में लाएअमल बताऊंगा। बैरिस्टर गौहर ने बानी को 13 शहादतों की इतला दी। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन की जिम्मेदारी दी। हुकूमत से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया, ताकत के ऐसे इस्तेमाल की तवक्को नहीं थी। कॉल बिल्कुल दुरुस्त थी। तो कहा कि मेरा तो ये कोई इरादा नहीं था, मुझे पता था कि ये ट्रैप है। जो फिगर कोट किया था बैरिस्टर गौहर साहब ने वही बताया गया 13 डेथ्स का। मुझे एक मजीद जिम्मेदारी जरूर सौंपी है और ये कहा है कि आप जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन जाएं। खबर शामिल करें, पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। नए केसेस के बाद मुल्क में पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 59 हो गई है। पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 WP1
V1 की शिनाख्त हुई है। लैब ने DI खान, कराची के माड़ी और कश्मीर से एक पोलियो केस की तस्दीक की है। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क में पुलिस से मुतासरा बच्चों में 26 का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, 16 का KP, 15 का सिंध और एक का ताल्लुक पंजाब और इस्लामाबाद से है। आदन जई कौमी जरगे ने कहा है कि किसी को इलाके में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। जरगे का कहना है कि हम इलाके में अमन व अमान सुकून चाहते हैं। चकदरा प्रेस क्लब में आदन जई कौमी जरगा खुर्शीद अली खान की सदारत में मुनक्किद हुआ। खुर्शीद अली खान ने कहा, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है। जरगे से खिताब में सल्तनत यार फैज़ुल्लाह खान, अली बादशाह, नेमुल्लाह खान और सरताज ने कहा कि आदन जई कौमी जरगे ने पहले भी क़याम अमन के लिए किरदार अदा किया था और अब अपना किरदार अदा करेंगे। इलाके में क़याम अमन के लिए आदन जई की पूरी कौम सियासत से बालातर होकर जरगे की पुश्त पर खड़ी है। हालात ख़राब करने की कोशिश की गई तो फिर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ज़िला करो में खून रेज़ा झड़पों के बाद जंगबंदी बरकरार। इतवार के शाम होने वाली फायर बंदी की अब तक किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सूरत हाल पर MNA इंजीनियर हमीद हुसैन ने इस्लामाबाद में अफगान नाज़िमुल अमूर से मुलाकात की है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़िला करो में झड़पों के दौरान 131 अफराद जाँ भाग, 186 जख्मी हुए। कबाइल के दरमियान होने वाली फायरबंदी के बाद अपर और लोअर कुरम के तमाम इलाकों में फायरबंदी की किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ताहम फायरबंदी के बावजूद आमदो रफ्त के रास्ते तहाल बंद और शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। पारा चनार समेत मुख्तलिफ इलाकों में शियाए खुर्दनोश, तेल और अद्वियात की कमी का सामना है। ज़िला कुरम से रुकने कौमी असम्बली और MWM के पार्लिमानी लीडर इंजीनियर हमीद हुसैन ने इस्लामाबाद में अफगान नाज़िमुल अमूर से सरदार शकीब अहमद से मुलाकात करके अफगान सरहद और मुल्क इलाकों की सूरत हाल और अवामी मसाइल के बारे तफसीली बातचीत की है। वज़ीर आला KP अली गंडापुर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत जरगे अरकान को इलाके में जाकर मुज़ाकरात करने के लिए दरकार तमाम सहूलियात और सपोर्ट फराहम करेगी। उम्मीद है ग्रैंड जरगे का जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। वज़ीर आला से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जरगे के मेंबरान की मुलाकात में कुरम के मसले के हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। जरगा अरकान के मामले के पुरअमन अंदाज में हल के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने पर इत्तफाक भी हुआ। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को हर मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। जरगा अरकान कुरम के मसले को जरगे के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने के लिए वज़ीर आला की कोशिशों को सराहा। ग्रैंड जरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करके फ़िरक़ैन के साथ बातचीत शुरू करेगा। वज़ीर आला का मामले के हल के लिए सूबाई हुकूमत को अपना ताउन फराहम करने पर जरगा अरकान का शुक्रिया भी अदा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से KP के गवर्नर फैसल करीम कुंडी के जरदारी हाउस में मुलाकात हुई है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कोहाट में ग्रैंड जरगे से क़याम अमन के हवाले से मुलाकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सेनेटर फैसल वावडा ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई है। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन में पार्टी के नुमाइंदे तब्दील करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक सेनेट से शिबली फराज की जगह बैरिस्टर अली ज़फ़र जुडिशल कमीशन इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर या लतीफ़ खोसा में से कोई एक पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। आपको बताएं कि कोई एक पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। बैरिस्टर गौहर या लतीफ़ खोसा में से कोई एक पार्टी की नुमाइंदगी करेगा, पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर या लतीफ़ खोसा पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जमानत केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के अहम रिमार्क्स से कहा, यह मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहले तरजीह यह मुल्क है, जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करेंगे। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। नाखुशगवार वाक़े से मुल्क का नुकसान होता है। उमर अयूब साहब, आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप अपोजिशन लीडर हैं, हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठ कर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है। मुल्क के अंदरूनी हालात बिला वजह ख़राब नहीं, बैरूनी हालात मुलविस हैं। पाकिस्तान को साजिश के तहत कमज़ोर किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने नहीं देंगे। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की सिर्फ बातें हैं।
بانی پی ٹی آئی کو اپنی جماعت کو سیاست کی ترتیب دینی چاہیے. بانی سیاسی ترتیب اسی صورت دے سکتے ہیں جب وہ خود حاصل کریں. پاکستان کے اندرونی حالات سبھی کے سامنے ہیں. اندرونی حالات بلا وجہ خراب نہیں ہیں, اس میں بیرونی ہاتھ موجود ہے. معاشی طور پر ہم سبھی کے سامنے ہیں کہ ہم کن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ٹی وی پہ بٹھا کے سیاسی جماعت سے یہ کہلوائیں کہ اسلام آباد میں 278 لوگ مار دیے گئے. کہ پاکستان کو کس طرح سے معاشی طور پہ غیر مستحکم کرنا اور معاشرتی طور پہ غیر مستحکم کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے. باتیں ہیں کہ صرف پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, پاکستان یہ ہو جائے گا, پاکستان وہ ہو جائے گا. نہیں, پاکستان میں 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں. سپریم کورٹ آئینی بینچ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کیس. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم تعیناتی کے خلاف سماعت کرنے والا آئینی بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس امین الدین خان, جسٹس جمعہ مندوخیل نے کیس سننے سے معذرت کر لی. آئینی بینچ نے کیس دوسرے آئینی بینچ میں لگانے کی ہدایت کر دی. جسٹس جمعہ مندوخیل نے کہا کمیشن کے 2 رکن یہ کیس نہیں سن سکتے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سینیورٹی کوئی بنیادی حق نہیں اور ماضی میں سینیورٹی سے ہٹ کر تعیناتیاں کی مثالیں موجود ہیں. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے کیس کو دوسرے آئینی بینچ میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے. آئینی بینچ میں قیدیوں کے لیے جیل سہولیات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. سپریم کورٹ آئینی بینچ نے جیلوں میں قیدیوں کو یکساں سہولیات کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے. عدالت نے قیدیوں کی سہولیات سے متعلق درخواست خارج کر دی. رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار ہیں. جسٹس جمعہ مندوخیل نے جیل رولز پر اعتراضات ہیں تو متعلقہ صوبائی یا ہائی کورٹ سے رجوع کریں. جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے اس طرح کی درخواستیں سپریم کورٹ نہ لایا کریں. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی.